चला दिया। हाँ, चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, सो एवरीवन look at whiteboard, okay, and how can you solve this question? In this video we will discuss about it, because this video is very important for knowledge. So question is that here, if tan alpha is equal to m upon m plus 1 and tan beta is equal to 1 upon 2 m plus 1, here we can write or if clear tan beta is equal to what given here 1 upon 2 m plus 1, then find the value of alpha plus beta. What you have to find here? Alpha plus beta. So whenever you will get this type of question, what you will do here? Nothing special you will do. Simply you will write solution, means hal. What you will write here? Solution. And in this solution, as you know that one formula. What formula do you know? Tan alpha plus beta. What is the formula of this? Do you know? You don't know? Tan alpha plus beta, it is equal to, every student look at whiteboard, tan alpha plus tan beta, okay, upon 1 minus tan alpha into tan beta. Clear? This is the formula of tan A alpha plus beta. And as you know that here, value of tan alpha is given here, m upon m plus 1. If we talk about here tan beta, so it is also given. What? Tan beta is equal to 1 upon 2 m plus 1. Clear? So in place of tan alpha we will write value of this, and tan beta is equal to, we will write value of this, okay, everywhere. And after it what we will do? We will solve, okay, and whatever we will get, that is your answer. Any problem to any student? No problem. Okay. So in this way, what happened here? In place of tan alpha, we will write 1 m upon m plus 1 plus tan beta. In place of this, we can write 1 upon 2 m plus 1 upon 1 minus tan alpha. Tan alpha means m upon into tan beta. Beta is what? 1 upon 2 m plus 1. That is clear? Okay. And after it what we can do here? We will solve. So how can you solve it? M into this, you will write m 2m plus 1 multiply m plus 1 with 1. So this becomes 2 m plus 1. And if we talk about in denominator to denominator, this becomes 2 m plus 1. M plus 1 into 2 m plus 1. In this way you will write, okay. And if we talk about in denominators, so what you can do? Here also 1 hidden, okay. Do cross multiplication. So 1 into this becomes 2 m plus 1, 2m plus 1 minus 1 into this become 2 minus m, and in denominator what you will write? M plus 1, 2m plus 1. These are equal to each other. It means both denominator will be cancelled out. What become it? What become it? Now open this brackets. So this becomes to 2m square. 2m square plus m. And what is there? M plus 1.
Clear? And this m into 2m, it can be written as 2m square. M into 1, this is equal m. And if we talk about y1, so what you will get here? 2m plus 1. And if we talk about here, so there is minus 1, so you will write as it is. And after it, this will come to 2m square, m 2m plus 1. This m will be cancelled out. And what left here? 2m square plus 2m plus 1. Numerator and denominator both are equal to each other. It means both can be cancelled out. What left? 1. It means alpha plus beta is equal to what is? 1. So alpha plus beta will be equal to tan inverse 1. And this is equal to what? What is the value of tan inverse 1? 45 degree. And this is in degree. If you want, so you can change it in radian. When you will change it in radian, what you will do here? You will multiply by pi and divided by, okay, 9 5 ja 45, 9 2 ja 18. Okay, now 5 1 ja 5, 5 4 ja 20. So this becomes to pi by 4. So alpha plus beta, and what is the question? What is the value of alpha plus beta? So value of alpha plus beta is equal to pi by 4. How many students are getting? Every year? Mr. Achhar Patel, are you getting it? Any problem? No problem. Okay. अब इसको दूसरे फिर समझ लीजिए एक बार. देखिए यहां पर लिखा है यदि अल्फा की वैल्यू ये है और बीटा की वैल्यू ये है, तब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ज्ञात करिए कीजिए. क्या करना है? हाँ, ज्ञात करना है. हमनी का पता है जा, मतलब हम जानते हैं. क्या जाना था भाई? हाँ, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला. नहीं सोचो कि हाँ गुरुजी जान गिन गोला मारा थे स्कूल से, घर से निकले स्कूल तक नहीं पहुंच पाए. क्यों ऐसा बहुत कर रहे हो भैया? मैं ये कर रहे हैं, कहा नाम इनके? प्रिंस कर रहे हैं. प्रिंस गोलेबाज हो गए हैं. गोलेबाज ना बन भैया. अब यहां पर देखो क्या होगा. ये देखो नाक में उंगली डाल रहे हैं. बड़ी गंदी बात है यार, ये सब ना किया करो. ये सब क्या कर देते हो? यहां पर ध्यान दो. देखिए tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? tan अल्फा प्लस tan बीटा अपान 1 माइनस tan अल्फा बीटा. ये समझ में आ रहा है? अब इधर देखो, इधर tan अल्फा की वैल्यू कितना है बताओ? ये लिखा है, देखो बेटा, लिख दिया. और tan बीटा, बीटा माने बेटा, बेटा माने बीटा, क्या हो गया? ये लिखा है. फिर यहां पर देखो tan अल्फा लिखा, tan अल्फा की वैल्यू यहां से ऊपर देख के लिख दिया. बीटा का आज बीटा की वैल्यू लिख दिया. लिख दिया नहीं लिख दिया? कोई समस्या नहीं है ना? ठीक है. अब आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे, ये भिन्न का जोड़ है. दिस इज ठीक है, ये भिन्न का जोड़. तो इसके साथ इसका गुणा होगा, इसके साथ इसका गुणा होगा, नीचे नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. तो भैया इसके साथ मैंने इसको गुणे में लिख दिया और इसके साथ इसको कर दिया, नीचे नीचे गुणा कर दिया, तो ये आ गया. अब यहां पर देखो क्या होगा भाई, ये बटे में है, इसका गुणा इसमें 1 के साथ होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, 1 का इसमें होगा तो ये हो जाएगा. देखिए कौन सा गया भाई? किसके साथ? हाँ, इसका इसमें m में होगा तो ये हो गया. नीचे नीचे करोगे तो यही रहेगा. अब दोनों के नीचे बराबर है तो कट गया भाई. ये भी वही चीज, ये भी वही चीज. कट गया नहीं कट गया? कैंसिल आउट हुआ कि नहीं हुआ भाई? हो गया. ठीक है. और अब ब्रेकर तोड़ दो. तो m का जब 2m में गुणा करोगे 2m स्क्वायर हो जाएगा, और m का अगर 1 में करेंगे तो m हो जाएगा. बाकी m प्लस 1 तो वहां लिखा ही है. इसी प्रकार से नीचे भी है. m का अगर 2m में करोगे तो 2m स्क्वायर, m का अगर 1 में करेंगे तो m, 1 का 2 में करेंगे 2m 2m, और 1 का 1 में करेंगे तो 1, और यहाँ पर माइनस m. अब यहाँ पर मैं जोड़ दिया, 2m स्क्वायर यहाँ पर है
एक एक यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ +1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2m² है, ये m प्लस है, ये माइनस है, कट गया, यहाँ पर 2m+1 बच गया और दोनों ऊपर नीचे कट गया, वैल्यू आ गया 1। अब यहाँ पर लिखा tan अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। अब tan अल्फा उधर जाएगा, दर 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 इनवर्स बन गया और इसकी वैल्यू होती है 45। 45 को बना लो, 8 डिग्री में था, मैंने इसको तुरंत कहा भैया रेडियन में कन्वर्ट हो जा। इसके लिए क्या करना है, पाई से गुणा और 180 से डिवाइड। हो गया नहीं हो गया? सोल्यूशन समझ में नहीं आया क्या? अगर बोल दो नहीं है तो एक लाइन में लगा दूंगा। नहीं है? एक लाइन में लगाऊंगा, एक लाइन में अगर कह दो नहीं है तो ना लगाएंगे। चलो देखो, कह रहे हो तो लगा देता हूं मैं, मुझे क्या है, मैं तो सीधा साधा आदमी, अब क्या मैं कर सकता हूं भाई। देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं m बराबर 0 मान लूंगा। m बराबर क्या मान लूंगा? तो इधर देखो भैया, बत्ता देखो यहां जब 0 रखोगे क्या आएगा बताओ? अच्छा 0/0 + 1, ये हो गया 0। tan में 0 किसकी वैल्यू होती है बताओ? tan 0 का मान 0 होता है भाई। 0 किसकी वैल्यू होती है? tan 0 को होती है ना। तो अल्फा की वैल्यू कितना आ गया? tan से tan कटेगा 0 आ गया ना। नहीं समझे क्या? इसमें रख दो 0 तो क्या देगा? तो यहां आ जाएगा 1। अब tan में 1 किसकी वैल्यू होती है बताओ भाई? जैसे m की जगह 0 रखोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1/1 आ जाएगा ना, और 1 आगे एक वैल्यू होती है tan में 45 की होती है ना। तो tan से tan कटेगा तो बीटा की वैल्यू कितना आ गया? अभी हमें कहा पूछ रहा, पहले बताओ। अच्छा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ। तो अल्फा तो 0 है निकाला है, बीटा के 45 निकाला है, तो भैया 0 में 45 जोड़ेगा तो 45 है तो आई। अब बताओ मतलब नहीं है क्या? क्या भाई क्या लाइन में लगा बताओ? अच्छा एक लाइन में है 30 सेकंड, ये तुमका समझा रहे हैं तो इतना हुआ। हाँ ठीक। हाँ हम बताइए कैसे लगाए? अगर हम लगाते तुम कैसे लगाते? मैं यहां पर वैल्यू दे रखता, मैं जानता 0 की वैल्यू 0 आएगा, और यहां पर रखता तो जानता था कि 45 है, बस 0 में 45 जोड़ा 45 आंसर। हम लगाते ही ना। अगर हमारी बात आती ना तो हम ना लगाते। क्यों? अच्छा है कौन? तो फिर अरे भैया ट्रिक पे ट्रिक लगा दूंगा, क्या टेंशन ले रहे हो? समझ में आया कि नहीं पहले बताओ। अब यहां पर देखो, मैं इसको क्या कर रहा हूं? मिटाने चल रहा हूं। देखो ये मिटा दिया, और देखो हाँ बंद कर दो, ठीक है। देखो मैंने मिटा दिया। अब इसके आगे देखिए ये क्वेश्चन लिखा है, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, बीआईपी क्वेश्चन, जिसे बोलते हैं क्या? बीबीआईपी। हाँ वही है ये, समझो। मैं इसको बेचारे को क्या कर दिया, यहां छटा दिया। ये यहां पर क्या कर रहा है? ये डिस्टर्ब कर रहा है ना आपको। तो इस डिस्टर्बेंस को यहां से हटा दो, और फिर आगे देखिए यहां पर क्या होगा। देखो जो डिस्टर्ब करे उसको आप डिस्टर्ब कर दो, और जो ना डिस्टर्ब करे उसको आप भी ना डिस्टर्ब करो। आप इसको डिस्टर्ब कर दो। देखिए बेटा, ये सवाल आपके पास में लिखा हुआ है, और यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। इधर देखिए क्या लिखेंगे, यहां पर सॉल्यूशन लिखेंगे। व्हाट वी कैन राइट हियर? सॉल्यूशन। एंड इन दिस solution, first of all we will write question. What we will write first? Question. And question is what here? This is your question. Cos theta plus sin theta to the whole square. Okay, and there is what? K sin theta into cos theta equal to 1. And in this question you have to find value of k. What you have to find here? Value of k. Okay, this is very important and very easy questions. Okay, if we talk about for examination,
So as you know that this is look like a plus b to the whole square. What type it look like? A plus b to the whole square. So as you know that here, what is the formula of a plus b to the whole square? A square plus b square plus 2ab. This is what? This is a formula. Okay, and this formula we will use here to finding value of k. What formula we will use here? A plus b to the whole square. And in place of, if we talk about, so in place of a is what? Cos theta. Okay, and in place of b, what is it? Sin theta. So open this bracket with help of this formula. So what we can write here? A square means cos square theta plus b square means sin square theta plus 2a means cos theta, b means sin theta. Okay, and what left? Plus k, there is what? Sin theta into cos theta. If we want, so we can write cos theta first and in second number sin theta. In multiplication we can change place. Okay, means this is what? Cos theta, and it is at second place. So if you want, so we can write it in first place. According, it is my choice. Okay, it is our choice. And equal to what given here? 1. And as you know that here, cos sin square plus cos square, this is equal to 1. Okay, and in this if we want, so we can take what? Cos theta sin theta is a common. We can take or not? Hey, so what happened here? 2, no problem, do right here. 2 cos theta into sin theta plus what is here? K cos theta sin theta. There is 1. This 1 transfer where? In right hand side. When you will transfer this one in right hand side, this become to 2 cos theta sin theta plus k cos theta sin theta is equal to 1 minus 1 equal to 0. Hey? Any problem? Any problem to any student? Okay, after it what we can do here? Hey? Cos theta sin theta. If we wanna, we can take common. Okay, so all left in bracket, inside the bracket we will write 2 plus k, okay, equal to 0. And if we take this 2 plus k equal to 0, so what will be the value of k? Minus 2. So minus 2 is your what? Answer. Minus 2 is your answer. Any problem? Every student will do hard work. Okay, if you want achieve your goal. Okay, and always you can perish but I can't surrender. अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है यहां पर? cos प्लस साइन का होल स्क्वायर प्लस के साइन थीटा cos थीटा बराबर 1. ये लिखा है ना? ये बताओ पहले समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अभी तक आप त्रिकोणमिति पढ़े थे? इस तरह पढ़े थे? ये कुछ है? क्या है? सवाल है, लेकिन अब यहाँ पर आपको कठिन लग रहा है कहीं से? ठीक है, बड़ा इजी बता रहा हूँ नहीं बता रहा हूँ? खिलवाड़ करके बता रहा हूँ नहीं बता रहा हूँ? नहीं बता रहा हूँ खिलवाड़? ठीक, अब यहाँ पर देखो पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर टाइप का है नहीं? तोड़ दो. a देखिए cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन cos हो जाएगी नहीं? ब्रेकेट हटाओ, क्या मतलब कि नहीं? बोलो समझ में आगे नहीं आ गया? मिस्टर look at whiteboard, don't look anywhere, otherwise what happened with you I don't know about it. I give you punishment negative myself, that is very hard. Okay,
तो देखिए cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, और यहां लिखा है 2 cos, यहां पर साइन, यहां पर के, यहां पर एक कबूतर, यहां पर एक खरगोश, कबूतर की जगह काश है, खरगोश की जगह ये है, ठीक है, बराबर 1। अच्छा बताओ इधर देखिए +1 है ना, इसको मारा एक मुक्का तो ये भाग के इधर जाके गिरा, अब तुरंत 1 से 1 घट के 0 हो गया है। अब हमारी बात समझो, मैं देख रहा हूं कि ये कॉमन हो रही है, यहां से क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो कॉमन ले लिया हूं, यहां पर कॉमन ले लिया, अब अंदर क्या बचा 2 बचा, यहां पर के बचा, तो यहां पर 2 + के लिख दिया। अब प्रिय छात्र मुझे तो के की वैल्यू बताना है, थीटा उठा तो वैल्यू बताना नहीं थी, आगे लगाने क्या मतलब है यार, तो यहां पर मैंने इसको उठाया बराबर 0 रखा, के की वैल्यू -2 आ गई यार, काम खत्म। समझ में आया कि नहीं आया, ना आया हो तो बताओ, ना आया बताओ, दूसरा तरीका बता दें, चलो देखो दूसरा तरीका, कहां तरीका के कमी है आज के डेट में, एक तरीका नहीं आया, दूसरा तरीका देखो कहो। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं सवाल को लिखूंगा, लिख दो बेटा सवाल, cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस के साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू 1, ये लिखा ना, मैंने कहा थीटा की वैल्यू रखिए, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, बट वो वैल्यू आप नहीं रख सकते हो जिस पर ये पूरी वैल्यू या तो 0 हो जाए या तो इनफाइनाइट आ जाए। तो भैया अगर अब मैं यहां पर रखता हूं cos 0, किसकी वैल्यू बताना बता, अच्छा क्या की वैल्यू, किसकी वैल्यू बताना है, अगर मैं थीटा की जगह पे 0 रखता हूं तो भैया साइन 0 होगा कि नहीं होगा, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, और ये के भी यहां पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब हमारा 0 इस पे काम करेगा, क्या करेगा, तो हम मैं क्या करूंगा, साइन से बड़ी कोई नंबर रख देंगे, 30 रख सकते हैं, 45 रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं, ऐसे रखेंगे, 90 रखेंगे, फिर 90 फिर cos 0 हो जाएगा, तब भी 0 हो जाएगा, ठीक। तो मैं सोच रहा हूं कि लाओ 30 रख दें, क्यों 30 रखेंगे 45 रखेंगे, तुम बताओ, चलो ये कह रहे हैं 45 तो 45 रखता हूं, चलो साइन। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, लगाते हैं, भाई लगाने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा लगाओगे ज्यादा माथा खराब होगा, कम लगाओगे माथा सही रहेगा, कहता नहीं, क्या कहती, कहो जो माथा सटक जा सकता थी, आशा माशा कैसे सटक ली, आजा माजा, टीवी कोड़ा भैया, आजा माजा, आता माझी सटक ली, मतलब बच्चा ये लिए पूछी था कि पिक्चर ज्यादा देख रहे हो, पता लग गया, क्योंकि डायलॉग याद है तो मतलब पिक्चर, मतलब वो है ना भैया, अगर डायलॉग याद है कि मतलब पिक्चर ध्यान से देखते हैं। देख लो पटेल जी, ये ऐसा काम कर रहे हैं, बड़ी गंदी बात यार। देखो इधर भैया, तो कुछ लोग क्या करते हैं, वैल्यू इसमें रखते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं वैल्यू रखने की आवश्यकता नहीं है, बिना वैल्यू रखे काम कर लो तो ज्यादा बेटर होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, cos 45 रख दिया मैंने, आज मैं रख देता हूं इसमें समझने के लिए, आपको रख देता हूं, बाकी अगर हम स्वयं के होता है ना बात तो ना रखते। हाँ मैं सही बता रहा हूं, मैं अगर स्वयं के लिए लगाता तो मैं कभी ना रखता। 45 का मान कितना होता है, इधर आओ, यहां आओ, जल्दी आओ। हाँ आज सब लोग बोलोगे इनके साथ में, खरा खाट कोई वो नहीं करोगे, आज ये वीडियो में आ गया, अरे चेला देख लो, एक दिन और है, पहले तो आशीर्वाद देते सबको, हेलो खुश रहो, हाँ बात कही, खुश कह दिया ना। अब यहाँ ये कौन सी डिग्री बताओ, 0 के बाद कौन आता है, 30 के बाद कौन आते हैं, 45 आते हैं, फिर कौन आते हैं, 60 के बाद कौन आते हैं, 90, ठीक। फार्मूला होता है अंडर रूट फिंगर अपॉन 2, ट्रिक क्या होता है, अंडर रूट फिंगर अपॉन 2, वो भी छोटी उंगली की तरफ से, साइन के लिए, साइन के लिए। अब देखो ऊपर उठाओ, अब मैं और इधर हो जाओ, आशीर्वाद सही से दो, गड़बड़ ना करना। अब यहां पर देखो कोई पूछे साइन 0 का मान बताओ,
किसका पूछे? तो जीरो कौन है भाई? ये पे लिखा है। वो का नीचे करो जो पूछे, इसको नीचे किया। अब बताओ इसके जो उंगली नीचे किए इसके इधर कोई उंगली दिखाई दे रहा है? तो क्या देगा? फिंगर की जगह लिखोगे 0/2 अर्थात 0। अब आइए साइन 30 के लिए देखिए। 30 अब उंगली सही कर लो ना। 30 वाला नीचे करो, 30 वाला। अब बताओ जो उंगली नीचे करो उसके छोटी की तरफ कौन उंगली है? एक है ना, तो √1/2 मतलब 1/2। साइन कितना? 45। 45 वाली कौन है? ये। अब बताओ इसके इधर कितनी उंगली है? तो √2/2 और इसको हल करोगे तो √2/2 मतलब ऊपर भी 2 से गुणा करोगे, नीचे भी करोगे, और ऊपर तो आ जाएगा 2, नीचे 2√2 कट गया, 1/√2 आ गया, 1/√2। ठीक। अब साइन 60 के लिए क्या होगा? कितनी उंगली है इधर? तो √3/2। इधर देखा तो हमका क्या देख रहे हो भाई? इनका बताओ ना, लड़कों का पढ़ा रहे हो ना आप तो। अब बताओ साइन 90 का मान बताओ क्या है? 90 का मान 90 बताओ। 90 कौन है? तो एक नीचे करो ना, कितने ऐसे करेंगे ना। अब बताओ कितने बचे? तो क्या लिखोगे? √4/2 2/2 1 आ गया। अगर साइन के लिए देखना है तो किधर से देखना पड़ेगा? छोटी उंगली से। और काश के लिए किधर देखोगे? बड़ी उंगली से। अब चलो ये देखो भैया, काश 0 का मान किधर आएगा? तो 0 को नीचे करो। आए? चलो आप दोनों देखा करते ना। देखो 0 है, 0 नीचे किए। अब अंगूठे की तरफ से देखा जाता है कांस वाला। तो कितनी उंगली है? 1 2 3 4। कितनी है? 4। तो यहाँ क्या लिखोगे? कितना रहेगा? 2/2 हो गया 1। ठीक। अब आइए 30 के लिए। उधर देखो, तुम उनका समझाओ पहले। 30। अब बताओ 30 करो नीचे। क्या उंगली बच्चा? अंगूठे की तरफ। कहा देखो, एक नीचे करो। 1 2 3। ठीक। तो क्या लिखोगे बताओ जल्दी से? 3/2। 3/2 लिखेंगे। अंडर नहीं बोलोगे? √3/2। हाँ ठीक। आपने लगा दिया। नहीं, अपने मन से कैसे लगाएंगे? जब बताओगे तभी तो लगाएंगे। आप बताइए किसकी वैल्यू? 45। रुक जाओ, cos 45 लिख दिया। बताओ क्या लिखा इसकी वैल्यू? √2/2। हाँ, अंडर कैसे 2 जाना? हाँ, इधर 2 उंगली बची ना। √2/2 को अभी हल किया कितना था? 1/√2। आप किसका बताओगे? 60 का 60 का मान कितना होता है? √1/2। तुम तो अंगूठा दिखा रहे हो। और इसके बाद कौन सा आएगा भाई? cos 90। 90 पे कितना? इधर कोई उंगली है नहीं, अंगूठा उधर कोई है ही नहीं है। √0/2 बराबर 0। अब फिर से आशीर्वाद दे दियो बेचारे का है। अभी आओ, कहाँ जा रहे हो? आओ रहा हो ना। इतना हो गया ही नहीं हो गया? हो गया ही नहीं हो गया भाई। अभी एक और बताना है ना। अब इसके बाद ये खत्म हुआ। अब ऐसा है, अब एक और काम करेंगे। अब तुम जाओ बैठो। अच्छा, अब दूसरे को बुलाइए। आओ आदर्श। नहीं तुम ही आओ। नहीं नहीं नहीं, इनका 2 लोग टांग के लेके आओ। आओ जल्दी आओ। नहीं चल रहा ना ये, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ। आओ जल्दी आओ। नहीं सर जल्दी आओ, पेन लेके आओ। देखो आए गए। आशीर्वाद दो तुम। आशीर्वाद सबको दो। सबको आशीर्वाद हमारा। चलो लाओ। ये क्या लिखा है पहले देखो। भी लिखे नहीं। अब बताओ क्या लिखा हमने? शून्य। ये क्या लिख दिया? 30। ये क्या लिख दिया? 60। 30 के बाद 45। 45 बाद 60। 60 के बाद 90। ठीक। अब इधर देखो, ध्यान दो। साइन का बता गए नहीं है? तुम्हें किसको बताना है? तो अब tan के लिए क्या होगा? देखो tan के लिए ट्रिक। tan अगर निकालना हो तो अंडर रूट फिंगर
बटे फिर अंडर रूट फिंगर। दोनों में। हाँ बेटा, बस एमा छोटी उंगली की तरफ से छोटी उंगली और इधर अंगूठा, अंगूठा, ठीक है। चलो इधर देखो, पहले इधर, इधर देखो, हाँ सर जी देख रहे हैं। tan 0, हाथ सही से उठाओ पहले, हाँ सर जी। ऐसे करो। अब 0 कितना, 0 वाली उंगली नीचे करो। अब बताओ इधर कितनी उंगली है? एक उंगली है, नो सर। तो ऊपर क्या लिखा जाएगा? और इसके इसके इसको कर भाई, करोगे। इधर कितने बचे हैं? तो बटे में √4। बताओ कितना आ गया? 0। क्योंकि ऊपर 0 तो 0 हो गया ना। अब आ जाइए tan 30 पर 30 डिग्री के। एक सर ऊपर। तो अब बताओ ऊपर कितनी उंगली जाएगी? एक। इधर वाली उंगली जाती है, छोटी वाली। यस सर। एक उंगली तो जाएगी ऊपर, और बटे में 3। और बटे में कितनी उंगली जाएगी? कितना आ गया? 1/√3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यस है? सर। इनका बताते रहे, आगे देखा करो। आप पुनः देख रहे हो, कहा नाम है चला। अब देखो tan 45 डिग्री, 45 के लिए क्या करोगे? सर ये 2। ये नीचे जाएगा, हाँ सर यही नीचे है। क्या? अब बताओ जरा, देखो इसीलिए मैंने छोटे बच्चे को बुलाया, बड़े वाले को नहीं बुलाया जी, ठीक है। अब देखो 45 में नीचे कौन जाएगा? ऊपर, ऊपर ये वाला जाएगा ना 2, और नीचवा कौन जाएगा? 2। तो इमा खाओ जी, बताओ कितना आ गया? 1। देखो 45 की वैल्यू 1 होती है, ये जानते थे? बताओ इसके पहले आप ये जानते थे ट्रिक? नो सर। आज सीख गए कि नहीं सीख गए? यस सर। चलो आप देख रहे हैं। tan 60 की वैल्यू tan से 30 इधर से ऊपर √3। ऊपर कितना आएगा? √3। नीचे कितना आएगा? 1। तो √3 बाई √1 बराबर √3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब किसकी बात करेंगे? सर जी 90। tan 90। 90 कहाँ है बेटा? ये है सर। इधर ऊपर कितना जाएगा? 4। निचवा कितना जाएगा? 0। भैया 0 से किसी को भाग करते हो तो क्या होता है? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब जिसे tan आ गया वही अब जिसे कॉट के बताना है तो इसे पलट दो, यस तो ऊपर अंगूठा, नीचे छोटी उंगली आ जाएगा कि नहीं आ गया? यस सर। पहले तो इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। जाओ अपनी जगह बैठ जाओ, ठीक है। ये चीज है। अब मैं इसको दे रहा हूं मिटा। अब जरा मुझे ये बताओ, जरा मुझे ये बताओ कि ये चीज जितना हमने आपको बताया, ये समझ में आया कि नहीं आया? एंगल क्या कभी भूलोगे? अब नो सर। भविष्य में भूल जाओगे क्या? बोलोगे क्या? क्या नाम आपने बताए थे? निखिल। घर में अखिल तो नहीं है? मोन? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं, जिसके घर में निखिल उसके घर में अखिल। ये होता है, जिसके घर में मोनू उसके घर में। हाँ, अब यहां पर देखो, हम तो भाई नाम है गुड्डू सर, गुड्डू सर अकेले है, ठीक है। चलो देखो मैं क्या करने चल रहा हूं भाई। अब यहां पर मैं देखिए क्या करूंगा। 45 की वैल्यू क्या आती है? अभी बताया 45 वैल्यू क्या आती है? 45 वैल्यू क्या होती है? क्या है? स्क्वायर। यहां पर के 45 की वैल्यू, 45 की वैल्यू बराबर, भैया इन दोनों को जोड़ो, नीचे बराबर है तो √2 ऊपर जुड़ जाएगा ना। क्या क्या लिखा है? स्क्वायर। यहां पर देखिए ये 1/2 आ जाएगा ना, √2 से बराबर 1 हो गया। अब जरा बताओ इसका स्क्वायर करो, 2 2 जा, नीचे 2 ही रहेगा ना बच्चा। इधर देखो क्या लिखा, प्लस के बटे 2 है ना बच्चा, बराबर 1 है। अब 2 2 जा, अब ये उधर जाएगा तो k बटे 2 बराबर 1 - 2 ना बच्चा, भाई इधर जाएगा तो यही तो होगा। अब 1 से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? -1। तो k में इधर भाग में, उधर जाएगा क्या होगा? गुणे में। तो -1 × 2 हो जाएगा -2। तो k की वैल्यू क्या आ गया? समझ में आई नहीं आया? कितने लोग समझ गए? आसान बता रहा हूं कि या सरल बता रहा हूं? तो आसान में क्या अंतर है? दोनों एक ही चीज है। देखो फंस गए ना, ठीक है।
वही तो, अब मैं इसको मिटाने चल रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने चल रहा हूँ। देखो इतनी बातें बताया आपको, ये देखो झमाझम मिट गया, हमारी बात भूल गए होगा। चलो देखो, ये सवाल है और इस सवाल को लगाना है हाथ से और दिमाग चला करके, वो भी। अब मैं दिमाग लगाने चल रहा हूं, देखता हूं मैं क्या हो रहा है या कैसे लगेगा। लगा दूं? देखो, हाँ, अरे यार हे सुनो, इसके पहले भी था अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ। वहां पर हमने क्या किया था बताओ? मान रखा था ना। तो मैंने क्या रखा था वहां पर? हम सॉल्यूशन लिखे थे। पहले तो एक काम करेंगे, पहले तो इसको क्या करेंगे, मिटाएंगे। क्या किया जाए? मिटा दिया जाए। सवाल में यार दम नहीं है, बिना दम का सवाल है, और सवाल में क्या करना है ही है। देखो बेटा, प्रिय छात्र कृपया बोर्ड पर ध्यान दें, अन्यथा ध्यान दिलाया जाएगा। देखो, हम जाना था, हम जानते हैं, मतलब वी नो दैट, वाट वी नो दैट tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू नॉट अपॉन 1 माइनस tan अल्फा बीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस बीटा। देखो, हम जानते हैं कि आप घर पे पढ़ते हो कभी कभी tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है बताओ? tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। हो गया नहीं हो गया? अब यहां लिखेगी tan अल्फा, इसकी वैल्यू क्या दी ना भाई? ये दिया है ना 1 प्लस 2 की पावर x है, तो यार इसको नीचे ले जा सकते हैं ना, नहीं लिख सकते क्या? जैसे 2 की पावर x है तो नीचे ले जाएंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाए ना भैया, यहां माइनस लगा है, पहले समझत रहो। अभी इसके मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर क्या लिखा है? 1 प्लस 2 की पावर क्या लिखा है? 1 प्लस x की पावर माइनस 1 ना, एक की वैल्यू। नीचे क्या लिखा भाई? 1 माइनस इसका tan अल्फा की वैल्यू क्या दिया बताओ? 2 की पावर x ना, इनवर्स है, इनटू बीटा की जगह 1 प्लस इसी को लगाना है। देखो कितना बढ़िया सवाल है, ठीक है। अभी हमें ज्यादा माइंड नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है मां। कहो, देखो इसका पहले तो काम करो, एक के नीचे एक है ना भैया, एक है में गुणा कर तो कितना आ जाएगा बताओ? एक एक में एक प्लस एक है में कर तो क्या हो जाए? 2 की पावर x, नीचे नीचे करेंगे तो क्या आएगा? -1 है। और देखो इसका ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा भाई? 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस x, ये पावर 1, कौन चेंज नहीं कर रहे हैं हम, हर जी कहा मतलब चेंज करी ना हो। इसमें देखो क्या होगा, ये भी यही होगा, तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x पर पावर -1, और यहां पर क्या लिखा है? 1 प्लस x, यहां पर -1। अब देखो पहले एक काम करो, इसको माइनस है ना पावर, अब ये पलट जाएगा, माने जो नीचे लिखा हो कहां लिखा जाएगा? इधर लिख दे रहा हूं, 2x ऊपर चला जाएगा, नीचे कौन आएगा? 1 प्लस 2 की पावर x। इसमें देखे इसके नीचे एक छिपा है ना भैया, ये भी पलटेगा, तो 1 अपान क्या जाएगा बताओ? 1 प्लस x ना, नीचे देखो ये भी पलट जाएगा, तो क्या जाएगा? 2 की पावर x बटे 1 प्लस 2 की पावर x ना भैया।
ये इसके नीचे भी एक छिपा है, तो क्या देगा 1/1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस एक्स। सब पलट गए नहीं पलट गए बताओ? अच्छा, आप कठिन कहीं लग रहा है बताओ? अच्छा, सवाल खत्म हो गया समझ लो कि नहीं। अब इस तरह से एक चीज और भी यहां देखा जा सकता है कि सवाल को लोग बहुत जो बड़ा समझ लेते हैं। हम अभी इसका यार जानते हैं 2 की पावर एक्स को कुछ मान के भी लगा सकते थे, लेकिन हमने कहा कि क्या लगाएं, 2 की पावर एक्स सही से लिख दे रहे हैं तो 2x लग रहा है ना देखने में, 2 की पावर एक्स है, ठीक है। अब यहां पर देखिए भाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसे, इसका इसमें करोगे तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा बताओ? 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर एक्स ना, इसका इसमें होगा मल्टीप्लाई, तो प्लस 2 लिखा है ना 2 की पावर एक्स, इंटू किसका होगा 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस एक्स। हो गया नहीं हो गया? और नीचे नीचे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 1 प्लस 2 की पावर एक्स और 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस एक्स। हो गया नहीं हो गया बताओ? अच्छा, ये केवल ऊपर वाले के किया हमने ना अभी, अब नीचे वाले का भी इसी तरह करो। तो देखो इसके नीचे एक है ना बेटा, अब 1 का पहले इसमें मल्टीप्लाई करो इसमें, तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से? 1 प्लस 2 की पावर एक्स और यह आएगा 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस एक्स। इसका तो हो गया, इसके साथ में देखिए, इसके साथ हो। अभी क्या करो, 1 का 2 में करेंगे 2x में, तो 1 का जब करेंगे तो 2 की पावर x आ जाएगा ना ये, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा जल्दी बताओ? 1 प्लस 2 की पावर x और नीचे क्या आएगा 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस एक्स। अब देखो ये नीचे वाला कैंसिल हो गया ना, ये बराबर है, कट गया नहीं कट गया पूरा? अब एक तोड़ो पहले, ये कितना आ जाएगा 1 2 की पावर x, अब एक गुणा कर दो क्या देगा 2 की पावर x, और एक कर दो कितना जाएगा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 प्लस एक्स, यही तो आएगा क्या भाई? 2 की पावर x, इसका इसमें करेंगे ये आ जाएगा। इसी प्रकार से हम नीचे करो, 1 का इसमें करेंगे तो क्या आएगा बताओ? 1 का इसमें करेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 1 प्लस एक्स ना बेटा। अब 2 का इसमें करेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर x, ठीक है, और इसका इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर, बोलो जल्दी जल्दी क्या आ जाएगा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 प्लस एक्स, ठीक, माइनस का क्या आ जाएगा 2 की पावर x। इससे ये कट गया ना, इसमें कट गया कि नहीं कट गया बताओ? अच्छा, कोई समस्या नहीं है ना, ठीक है। अब इसी जगह से आप यहां पर समझिएगा, यहां लिखा गया क्या 1 प्लस, देखिए 1 2 कितनी जगह 2 की पावर x बताओ? 2 जगह है ना, इसीलिए 2 लिख दिया आगे। और यहां पर क्या लिखा 2 की पावर x हो गया, बात नहीं 2 की पावर 1 प्लस एक्स। नीचे क्या लिखा बेटा 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस एक्स, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 प्लस एक्स ना। और देखो 2 की पावर 1 प्लस एक्स है, इस पे 1 है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 1 प्लस एक्स ये भी हो जाएगा, और नीचे वाला ऊपर वाला सेम हो गया, कट गया ना, इसकी वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आ गई, और ये 1 किसकी वैल्यू है 45 की है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई 45 आ गई। कितना आ गया? ये लॉन्ग से था, लेकिन अगर इसी को शॉर्ट से लगाते तो इधर देखो पहले, अगर मैं यहां x की जगह पे क्या रख दो 0 रख दो 0 इसमें, तो tan अल्फा बराबर क्या जाएगा बताओ बेटा 1, और यहां 0 रखेंगे तो 2 की पावर क्या जाएगा बताओ? ये पहले तो एक नीचे कर लो, 2 बट्टे नीचे आ जाएगा 2 की पावर 0 और पावर -1 है ना, तो एक कितना हो जाएगा बताओ? ये 2 की पावर मतलब 2 आ जाएगा ना, 2 की पावर -1, और इसको इसके नीचे 1 है, पलटेंगे तो 1/2 आ जाएगा ना बेटा, यही तो आएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, इसमें रखो वैल्यू tan बीटा में, तो बीटा में रखेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ 1 प्लस 2 की पावर, जब 0 रखेंगे तो केवल 2 ही आएगा ना इसमें, है भाई, यहां 0 रखोगे तो 2 ही आएगा, पूरे पावर -1 है तो जाएगा 3 की पावर -1, इसके नीचे 1 छिपा है, 1/3 आ गया ना ये। अब आपको किसकी वैल्यू बताना है बताओ? अल्फा की वैल्यू निकालना है। यहां से देखो tan इतना हो गया, ये बीटा की वैल्यू ये आ गया ना इसमें, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में इसको रख दो उठा के, शॉर्ट ट्रिक से आ जाएगा जल्दी से।
इसकी जगह 1/2, इसकी जगह 1/3, इसकी जगह 1/2, इसकी जगह 1/3 काटोगे वही आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो तो बंद करो।